ট্রেনের ধাক্কায় গুরুতর আহত হাতি। ঘটনা শনিবার সন্ধ্যায় তেলিয়ামুড়া মহকুমার চাকমাঘাট এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, টিউমার হাতি একটি আতঙ্কিত নাম ছিল কৃষ্ণপুর এলাকায়। মানুষের বাড়ি ঘরে গিয়ে ধান ফসল খেত টিউমার হাতিটি। এটি ছিল তেলিয়ামুড়া বন দপ্তরের অধীনে যতগুলি হাতি রয়েছে তার চেয়ে সবচেয়ে বড় এবং স্বাস্থ্যবান হাতি। শনিবার রাতে ধর্মনগরগামী ট্রেনটি তাঁকে ধাক্কা দেয়। এতে হাতিটির পেছনের দুটি পা ভেঙে যায়। বর্তমানে সে অচল হয়ে পড়ে আছে গভীর জঙ্গলে। আরো জানা যায়, হাতিটির নাম টিউমারের কারণ হলো তার শরীরের একটি ফোলা অংশ রয়েছে যা টিউমারের মতো, যার জন্য তার নামটি বন দপ্তরের পক্ষ থেকে টিউমার রাখা হয়েছিল, যাতে দ্রুত চিহ্নিত করার জন্য। এর কারণে কৃষ্ণপুর এলাকায় পরিচিত হাতির নাম এবং খুবই আতঙ্কিত হাতি এটি। এলাকাবাসীর কাছ থেকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বনকর্মীরা এবং পশু চিকিৎসকের একটি প্রতিনিধি দল। তারা লক্ষ্য করেন হাতিটির আভ্যন্তরীণ কোনো গুরুতর আঘাত লক্ষ্য করা না গেলেও পেছনের দুটি পা পুরোপুরি ভেঙে গেছে। সাথে সাথে হাতিটির চিকিৎসা শুরু করা হয়। একই সাথে হাতিটির খাবারের বন্দোবস্ত করা হয়। বন দপ্তরের এক কর্মী জানায়, তারা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে লক্ষ্য করে হাতিটির দুটি পা ভেঙে গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে 7টা নাগাদ ধর্মনগরগামী ট্রেনের ধাক্কায়। তবে এই ঘটনাটি ঘটার পেছনে পুরোপুরিভাবে দায়ী ট্রেনের লোকো পাইলট। এনএফ রেলওয়েকে আগে থেকে বলা ছিল তেলিয়ামুড়া থেকে মুঙ্গিয়াগামী পর্যন্ত হাতির করিডোর হওয়ায় ট্রেন যাতে ধীরে চালানো হয়, কিন্তু এর মন্ত্রকের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে দেখা গেছে অত্যন্ত দ্রুত বেগে থাকায় ট্রেনের ধাক্কায় হাতিটি আহত হয়েছে। লোকো পাইলট যদি ট্রেন ধীরে চালাতো তাহলে এই ঘটনা সংঘটিত হতো না। তেলিয়ামুড়া মহকুমার গামীর মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং স্বাস্থ্যবান এই টিউমার হাতি। দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় রয়েছে এই হাতিটি। অভিযুক্ত ট্রেন চালক লোকো পাইলটের বিরুদ্ধে রেল পুলিশের কাছে একটি মামলা করা হবে। পাশাপাশি ট্রেনের কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করে সতর্কতা জারি করা হবে। কারণ গত ফেব্রুয়ারি মাসেও এই ধরনের একটি দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, তখনও একটি মামলা করা হয়েছিল। কিন্তু ট্রেন চালকদের গাফিলতির কারণে এভাবে ত্রিপুরার হাতির জীবন ঝুঁকিতে ফেলতে দেওয়া হবে না বলে জানিয়ে দেন তিনি আরো জানিয়েছেন, তারা সেখানে হাতিটির চিকিৎসা এবং খাবারের বন্দোবস্ত করবে। आज एक्चुअली 7 बजे हमें फ़ोन आया था हमारे फॉरेस्ट स्टाफ से कि ये जो 05675 ये जो ट्रेन अगरतला से धर्मनगर जाता है हर दिन, तो ये 6 बजे अगरतला से निकलता है और 7 बजे के करीब करीब ये तेलियामुरा मुंगियाकामी होके आगे जाता है। तो 7 बजे के करीब हमें फ़ोन आया था कि एक मतलब ट्रेन ने हमारे एक वाइल्ड एलिफेंट को हिट किया है। तो उसके तुरंत बाद हमारा स्टाफ जो है उनको हमने यहाँ पे फील्ड पे भेजा था। तो ये जो इंसिडेंट जो हुआ है ये तेलियामुरा और मुंगियाकामी रेलवे स्टेशन के बीच में हुआ है। चेन्नई 137 4 और 5 के बीच में हुआ है। तो ये 100 मीटर का जो स्ट्रेच है हमारा, ये ऑलरेडी एलिफेंट कॉरिडोर है इसमें, और ऑलरेडी रेलवे के पास इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पे जो ट्रेन का स्पीड है वो बहुत कम करना है और कॉशियसली उसको चलाना है। आप पीछे भी देख सकते हो कि ड्राइव कॉशियसली एलिफेंट हैबिटेट अहेड। तो यहाँ से हाथी जो हमारे वाइल्ड एलिफेंट से वो एक हैबिटेट से दूसरे मतलब रेलवे को क्रॉस करके जाते हैं। तो इसी बीच में हमारा एक जो लोकली हम उसको टीमर बोलते हैं, ये सबसे तेलियामुरा का सबसे बड़ा हाथी है, सबसे लंबा, सबसे हाइट वाला और सबसे हेल्दी ये हमारा एलिफेंट है। और उसको एक्चुअली आज 7 बजे के करीब ये जो धर्मनगर में जो ट्रेन जा रहा था उसने हिट किया है। उसका बैक साइड का दोनों पैर एक्चुअली फ्रैक्चर हुआ है। इसकी वजह से वो क्रॉलिंग करके एक 10-15 मीटर अंदर जंगल में अभी चला गया है। तो तुरंत हमने हमारा वेटरनरी टीम जो है उनको बुलाया था। हमारा फॉरेस्ट का जो स्टाफ है उनके साथ हम अभी जंगल में यहाँ पे आए हैं। उनको हाथी को हमने देखा है, थोड़ा प्रिलिमिनरी हमने उसको ट्रीटमेंट किया है, पेन किलर का इंजेक्शन वगैरह दिया है। तो अभी उसको खाना वगैरह यहाँ पे थोड़ा सा प्रोवाइड करेंगे। और कल हम जो एलिफेंट के एक्सपर्ट जो लोग हैं वेटरनरी डिपार्टमेंट से, तो उनसे हम बात करेंगे और उसका आगे जो ट्रीटमेंट करना है वो हम कल उसको देखेंगे। लेकिन इसमें आज देखा गया है कि ट्रेन का स्पीड भी ज़्यादा था और ये पूरा लोको पायलट का निग्लिजेंस के कारण मुझे ऐसा लगता है कि हुआ है। और हमने वैसे खबर भी लिया है कि यहाँ पे ट्रेन का स्पीड बहुत ज़्यादा था और उन्होंने एक तो ट्रेन को हिट करके हाथी को हिट करके तो चले गए, लेकिन उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन भी दिया नहीं। वो हमारे स्टाफ से हमारा जो लोकल वॉलंटियर्स लोग हैं उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दिया है और रेलवे डिपार्टमेंट से हमें इसका तुरंत कोई इन्फॉर्मेशन मिला नहीं। इस बारे में हमने लास्ट फरवरी महीने में भी ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था। उसी समय हमने एक रेलवे पुलिस में एक FIR भी किया था।
तो इस बार भी हम उनको एक एफआईआर भी करेंगे कल, और जो भी रेलवे का जो ऑफिशियल लोग से उनके भी बात, उनका साथ भी एक मीटिंग करेंगे, और उनको यहाँ पे फिर से हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो एलिफेंट कॉरिडोर है उसके बीच में आपको ट्रेन बहुत कॉशियसली चलाना है, ताकि हमारा वाइल्ड एलिफेंट को हम यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकें। কিন্তু শনিবার সন্ধ্যায় এই ঘটনার পর অনেকেই ব্যথিত। দূর দূরান্ত থেকে মানুষ জঙ্গলের মধ্যে ছুটে আসে হাতিটি দেখার জন্য। তখন কেউ কেউ হাতিটির সুস্থতা কামনা করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে দেখা গেছে। শ্যামল টিভি।